Hi everyone, I hope you all are doing good. So, the reason why I'm here today is something that I am bothered about for a very long time. And like होता है ना कि कोई चीज़ यहाँ होती है और वो तंग कर रही होती है आपको सोच सोच के. Although I should be very neutral when it comes to my readings, when it comes to taking cases, and I am very neutral and detached. But फिर भी there's some people who come and ask about spells, about magic, about this and that. So, and when I tell them about the consequences, long-term consequences of what it can lead to, and that's when they realize कि उनको तो ये सब चीज़ें पता नहीं थी, and this is something that they don't want to do. And then there are other set of clients wherein they are struggling with somebody casting a spell on them, somebody creating negative energies in their life, and there is no end to this. I know, like, I understand, I'm mature enough to understand if there is good, there is bad too. But tell me one thing which kind of makes me think that this is our life. हम जी रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड एवरी रिलीजन, एवरीथिंग teaches you about loving yourself the most. Still, we get into emotional blockages, emotional contracts with some people, जहाँ पे हमें लगता है कि हमें तो बस यही इंसान चाहिए. एंड इट्स ऑब्वियस, लाइक व्हेन यू लव समबडी, व्हेन यू गेट अटैच टू समबडी, तो आपको लगता है कि अगर आप किसी के साथ हो तो आपको कमिटमेंट मिले, आपको सब कुछ मिले, यू गेट दैट रिकग्निशन, यू एंड इट्स ऑब्वियस, इट्स ह्यूमन बिहेवियर, एंड आई डोंट फाइंड एनी फॉल्ट in this kind of mentality. However, if you are not able to get that person, या आपको लगता है that person could be interested in someone else, and then we think कि यार क्या किया जाए, should we cast a love spell, should we do some voodoo magic, should we do something so that ये मेरे कंट्रोल में रहे. First of all, controlling someone is not love, right? And then उसके ऊपर कुछ ऐसा कर देना जो कि वो इंसान अपने कंट्रोल में ना रहे और वो आपके दिमाग से चले, इज़ आई थिंक अगेंस्ट ह्यूमन काइंड. एंड देन पीपल कम, उनको हटाने के लिए एक तो सबसे पहले इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, एंड देन पीपल कीप डूइंग इट अगेन एंड अगेन. या आप ऐसे करते हो? डू यू इवन रियलाइज कि इन सब चीज़ों के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? मतलब आपको लग रहा है कि ठीक है, इट्स नॉट अ हैवी ब्लैक मैजिक दैट वी आर डूइंग, इट्स जस्ट अ लव स्पेल दैट वी डू, बट फर्स्ट ऑफ ऑल you are doing it against someone's free will, right? You have a freedom to choose who you love, all right? And similarly, that person also has a freedom to choose whether he wants to be with you or not. If he doesn't want to be with you, आपका कोई हक नहीं बनता किसी पे भी कोई किसी भी तरीके का स्पेल कराने का. और फिर भी आप चलो, आप अपने इंटेंशन में इतने ज़्यादा, ऑब्सेशन में इतने ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हो कि आपको लगता है कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा. Then listen to the long term impacts. First of all, when these things are being carried out, it is being carried out for a specific time. इन किसी भी चीज़ का लाइफ लॉन्ग इफेक्ट नहीं होता, दैट इज़ वन. सो व्हेन यू कास्ट समथिंग लाइक दिस ऑन एनीवन, it stays for some time, and then because that person is coming out of his will to you, वो कहीं ना कहीं आपकी बात मानेगा, बट वो उस तरीके से जब उसका ज़मीर गवाही नहीं देगा तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ पे खिंचेगा भी, एंड दैट्स व्हेन फ्रिक्शन गेट्स क्रिएटेड. This is from the relationship point of view, and that's what I have told you about manifestation also, कि if you want to manifest a relationship, but if you keep manifesting a specific person, they will definitely come out of your influence, but the way you want them to behave and react, they will not do that, because this is something that they are not willing to do at that particular time. Similarly, if you get someone bounded to you and you are doing a binding spell or anything, that person will come for a specific time, but वो उस तरीके से नहीं आएगा जिस तरीके से आप चाहोगे. So वो emotional detachment आपको तब भी फील होगा, right? Secondly, जब
वो उस तरीके से आ ही नहीं रहा है, तो फिर आपको और ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होंगे। आप सोचोगे कि आप और कुछ करा दो ताकि ये पूरी आपका गुलाम बन जाए, आपकी पूरी बात सुनता रहे, या इग्नोर द बन जाए एंड बन जाए, इट कैन, इट्स, आई एम not targeting any specific gender here, but I'm just talking in a neutral way. तो उससे क्या होता है कि आप सबसे पहली बात तो, क्योंकि दे आर डूइंग समथिंग आउट ऑफ देयर विल, यू आर क्रिएटिंग मल्टीपल ब्लॉकेजेस फर्स्ट ऑफ ऑल इन योर लाइफ एंड इन देयर लाइफ। पैसे तो ख़राब कर रहे हो उस टाइम पे, वो ठीक है, दोबारा कमा लेंगे, पर जो आप आगे जाके अपने लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हो, इट कम्स अप। सबसे पहले इट्स बैड कर्मा, सो यू विल डेफिनेटली हैव टू रीपे, and you have to repay that in terms of emotional blockages, mental blockages, physical blockages, and those blockages could be anything. Similarly, जिसके ऊपर स्पेल कास्ट हो रहा है उस बेचारे की तो कोई गलती नहीं है, और उसके लिए भी ये ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। सो अगर आपको ये लवी डवी फीलिंग आती है ना कि हाँ ठीक है अभी कर लेते हैं, 6 महीने में तो मैं सुधार लूँगी चीज़ें और मैं सब कुछ सही कर लूँगा, तो उसके बाद आप, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इट क्रिएट्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन अ पर्सनस थर्ड आई, क्राउन एंड देयर रूट चक्रा। सो जब तक, और इट विल fill them with more emotional turbulence, more fear related to this and that, could be anything depending on their personal situation. So 2 things, ना तो आप अपना कर्म अच्छा कर रहे हो, दूसरा किसी के अगेंस्ट जा रहे हो तो आप अपना भी बुरा कर रहे हो। इट्स नॉट कि आपको वो टेम्प्रेरी हैप्पीनेस तो मिल जाएगी, बट उसके लिए आप कितना रीपे करने वाले हो आपको नहीं पता। सो वाई टू क्रिएट दीज ब्लॉकेजेस? खुशी क्या मिलती है इससे? क्या मतलब कुछ बेनिफिट है? अगर यह है कि वो हो जाएगा तो भाई मेरे को मोक्ष मिल जाएगा, मेरे को मतलब भगवान जी सामने साक्षात आके दिख जाएंगे, तो आप करो, समझ में आता है। पर ये इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या है? जो आपके लिए बना है, इफ़ इट्स मेंट टू बी, देन लेट इट बी ना। आप स्पिरिचुअल हो, आप भगवान जी में विश्वास करते हो, आप सब कुछ करते हो, आप रीडिंग्स ले रहे हो या आप नहीं भी ले रहे हो, पर ये करके आप डेफिनेटली यू आर नॉट इवॉल्विंग ऑन योर स्पिरिचुअल पाथ। ट्राई टू हील द रिलेशनशिप, ट्राई टू मे बी प्रे कि जो भी है अच्छा हो जाए, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए वो हो जाए। पर अगर आप हाईएस्ट गुड के लिए नहीं अपनी मानोगे और फिर उसके बाद आपको 5 years 10 years डाउन द लाइन लगता है कि यार मेरे साथ ही क्यों ऐसे होना था, मैंने क्या गलत किया था, मेरे साथ क्यों इतना गलत हो रहा है, तो वो ब्लॉकेजेस आप ही ने तो क्रिएट करें अपने लाइफ में। सो इवन इफ इट्स अ हेल्दी स्पेल, इफ इट्स नॉट अ हेल्दी स्पेल, इफ इट्स समथिंग मच ग्रेटर देन दैट, मे बी अ वूडू, ब्लैक मैजिक, तंत्र, मतलब पैसों से तो आप जा रहे हो, दूसरा आप अपने कर्मा से भी जा रहे हो और आगे अपने लिए इमोशनल और फिनेंशियल ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। एंड आई डोंट नो, आई डोंट हैव अ बेटर वे टू मेक एनीबडी अंडरस्टैंड देन दिस, दैट इट इज़ नॉट राइट। एंड I am the one who says that there's nothing wrong, there's nothing right, but this is something which is definitely not right, because leave the other person behind. Leave the other person behind. This is something that you're not doing good for your own self. And it doesn't come back very nice. Trust me, it comes back in a very, very, very negative way. And it doesn't stay in this lifetime. It keeps continuing. when some soul curses you, it stays, और उसको निकालने में ही कितना टाइम लग जाता है, कितने एफर्ट्स लग जाते हैं। सो अंडरस्टैंड दिस, थोड़ा सद्बुद्धि लो, थोड़े अच्छे रास्ते पर आओ, कुछ अच्छा सोचो और सरेंडर इट टू द डिवाइन। इफ दिस पर्सन XYZ power, position, money is for your highest good, you will get it somehow. God will show you the way. एंड अगर वो इतना कुछ करने के बाद भी वो इंसान आपका नहीं है, मतलब आपका नहीं है, उसको छोड़ दो, अपने ऊपर फोकस करो, बिकॉज दिस इज़ योर टाइम एंड दिस इज़ समथिंग दैट कोई भी नहीं समझा सकता। अगर इतना समझ के भी आपको कोई भी नहीं समझा सकता, एंड यू आर मेंट टू basically take that suffering and learning by doing all of this, then it's all your choice. But as your friend, as your tarot card reader, as your healer, I can only make you understand this thing, because it feels really, really, really bad
when I am healing people and I can see their emotional blockages, and even when people have recovered from all of this and providing them with a strong protection, it takes efforts for me also, and it takes efforts for them also, first of all, to arrange that kind of money. Secondly, it's a continuous process which takes a lot of time. And third, it's a huge suffering. सबसे बड़ी चीज़ जो बॉदर करती है, इट्स द सफरिंग. सो खुद भी सफ़र मत करो, दूसरों को भी अपने ग्रीड, अपने लालच के लिए और ना कराओ. एंड इफ़ यू थिंक दैट यू आर अंडर अ स्पेल, then there's several ways to find out. Probably I'll make my next video explaining how to see that if you are under any kind of spell or not, under any kind of negativity or influence. Till then, stay tuned to my channel. Bye, take care.